Hello, this is Mrs. Seema Ishwantpai from Nirmal Classes. Yesterday I sent you video on 4.1 first and second maths. And today I am going to teach you 3, 4, 5. Come on, let's start. Our first question is express the following percentage as ratio in the reduced form. For that, first we have to write this one here. Yesterday I taught you this one. Test of divisibility 2. 0, 2, 4, 6, 8. These numbers should be in the units place, then that number, given number will be divisible by 2. Now how to do 3? You have to add these two numbers, and if you get 12, and then add these two numbers, if you get 15, and both numbers are divisible by 3, then the given number is also divisible by 3. Now test of divisibility 5 is in the unit place there should be 0 and 5. Okay. Now see, our first question is 75 is to 100. Let us read the question first. Express the following percentage as ratio in the reduced form. Following percentage. Now how will you know percentage is given? Because see, denominator 100, denominator 100. Either percentage is already given. Denominator 100, percentage. If the denominator is 100, then you should know that we are talking about percentage. Now first mass 75 is to 100. So our statement should be the ratio of 75 to 100. 75 divided by 100. Now see, test of divisibility 2, 0, 2, 4, 6, 8. 0 है. But we don't have 0, 2, 4, 6, 8 here. Now let us see, is it divisible by 3? 1 plus 0 plus 0, 1. No, we need not do then this one. Now test of divisibility 5, 0, 5, it is here. Okay, 5 ones are 5, 6, 7. 2, 25, 5 5s are 25, 5 2s are 10. Now again 5 0, test of divisibility of 5, 5 3s are, 5 4s are, it is 3 upon 4. Therefore answer is 3 is to 4. One maths is done. Now let us go to second maths. 44 is to 100. First write down the statement. The ratio of 44 to 100. 44 upon 100. Test of divisibility 2, 0, 2, 4, 6, 8 हाँ है यूनिट प्लेस में. 2 2s are 2 2s are 2 5s are 0 को 0. Again test of divisibility of 2, 2 11s are 2 25s are 11 upon 25. Now one prime number comes. Prime number आया तो we have to stop the maths. But तुम लोगों ने देख के लेने का. इधर अगर 11 का 22, 33, 44 है तो रिड्यूस कर सकते हैं. अगर वैसा नहीं है तो मैथ्स को उधर ही रुकाने का. 11 is to 25. Okay. Our second maths is finished. Now let us go to third maths. 6.25 percentage. It means first you have to write ratio of, no, here you need not write, okay. Now here this is given in decimal point, so what to do? 6.25 upon 100. You are writing like this, no. Now see, पॉइंट के बाद कितना जगह आया है, हमें ये पॉइंट को निकालने का है. तो पॉइंट के बाद कितना जगह है? 2 जगह है. तो आप लोग 2 0 डालो. तो अगर ऊपर डाला है तो नीचे भी डालने का. ओके, समझिए. पॉइंट के बाद अगर एक जगह आया होता तो आप लोग इंटू 10 करेंगे. 2 जगह आया तो इंटू 100. 3 जगह आया तो into 1000. Okay, now see how to do this one. 6.25 into 100. 625 0 0.
पॉइंट के बाद 2, ओके 625. It means you got one answer 625. Now 1 into 1, 1. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Test of divisibility of 5. 5 ones are 5, हाथ में 1. 5 twos are 10, हाथ में 2. 25, 5 fives are. Now 5 twos are 15 0. 1 2 3. Again test of divisibility of 5. 5 twos are 10, हाथ में 2. 5 fives are. 5 fours are 0 0. Again test of divisibility of 5. 5 fives are. 5 eights are 0. Again test of divisibility of 5. 5 ones are. 5 16s are. Okay. Your answer is 1:16. This is your answer. Okay. Now listen to me. अगर एक बच्चा बहुत क्लेवर है तो उसने ये सब करके बैठने का है क्या? नहीं. नाउ सी 6.25 दो जगह है. ओके तो आप लोग 625 उसका पॉइंट निकालिए. नीचे 100 ऑलरेडी रहता है ना, तो आपने दो जगह निकाला करके आप 2 जीरो डालो. समझ में आया ना? लेकिन फिर भी स्कूल में वर्किंग मांगता है तो आप ऐसा किया तो अच्छा, लेकिन आप मन में ऐसा कैलकुलेशन करो क्योंकि ये आपका जो मन में किया वो आपका स्टेप इधर आता है. ओके हाँ. नाउ दिस आंसर इज राइट. नाउ लेट अस गो टू फोर्थ मैथ्स. नाउ सी 52:100. So you have to write the ratio of 52 to 100. 52 upon 100. Now test of divisibility of 2. 2 twos are 4. हाथ में 1. 12. 2 sixes are. 2 fives are 0. 2 threes are. Now 2 25s are. Okay. Now your answer is 3:25. क्यों? अभी देखिए 3:25 ये अभी जाता नहीं है ना, तो तुम्हारा आंसर इतना ही 3:25. ओके नाउ लेट अस डू द फिफ्थ मैथ्स. सॉरी हियर 2 ones are 2 threes are. ओके तो 2 twos are 2 13:25. Now see I shall clear. See 52 upon 100. तो 2 ones are 2 threes are. 2 fives are, फिर ये 0 इधर. 13 upon 25. 13:25. अभी पहला हम लोग यही लिखेंगे 13 upon 25. Now see इधर एक प्राइम नंबर आया 13. तो आपको मैं एक रूल बताती हूँ. ये मैथ्स इधर ही रुकाने का क्या कंटिन्यू करने का कैसा मालूम पड़ता है? अगर इधर 26 39 13 से जाने वाला नंबर होता तो आप क्या करते थे? 13 1s are 13 2s are. लेकिन अभी वैसा नहीं है तो आपको मैथ्स इधर ही रुकाने का है. इधर मैं फिर से एक बार क्लियर करती हूँ. 2 2s are 4, हाथ में एक 2 6s are. तो इधर 2 50s are. फिर ये 2 1s are 2 3s are. 2 2s are 25. तो 13 upon 25. तो 13 upon 25 आया तो इधर 13 प्राइम नंबर आया. लेकिन ये 25 5 का टेबल भी जाता है लेकिन ऊपर का नहीं जाता है. तो अभी एक ही ट्रिक्स है. इधर 26 39 सब है क्या लिखने का नहीं है, तो आपको लिखने का है 13:25. तो हमारा ए मैथ्स राइट. अभी हम लोग जाएंगे 0.64%. फिर से यही वर्किंग कैसा करने का बताइए? 0.64 अपॉन 100. अभी हमें डेसिमल पॉइंट नहीं मांगता है तो हम लोग क्या करेंगे? 0.64 into 100. 100 into 100. ओके तो 64 को 100 से इंटू किया तो क्या होता है? देखिए 0.64 को 100 से किया तो 64 और ये 0 0. तो पॉइंट के बाद दो जगह करके क्या होता है? 64 बचता है. ओके तो अभी हम लोगों ने कैसा करने का? 64 और अभी 1 into 1 1. 1 2 3 4. 1 2 3 4. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2.
2 3s are 2 2s, 2 5s are, अभी फिर से 2 16s are, 2 2s are 4, 2 5s are 0 0, फिर से 2 8s are, 2 1s are, 2 2s are 1 2 5 0, फिर से 2 4s are, 2 6s are 12 25, 4 upon 6 25। अभी ये तो 4 का टेबल में नहीं जाता, 2 का टेबल में भी नहीं जाता, तो हमारा आंसर क्या है 4:6 25। ओके राइट। चलो नाउ लेट्स गो टू फोर्थ मैथ्स। Now our fourth question is, three persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? 3 लोगों को एक घर बांधने को 8 दिन लगेंगे, तो अगर उसी काम को 6 दिन में खत्म करने का है तो कितना लोग बनता है? तो क्या ये मैथ्स अभी सीधा शुरू करने का क्या? नहीं, अभी देखिए सबसे पहले हमको क्या करने का है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का है। लेट अस सी। नाउ सी, आई हैव prepared a table here. This one is of direct variation and this one is inverse variation. Now see, price of register books, it is written here, number of books here. Rate of one book rupees 20, rate of 2 books rupees 40, rate of 3 books rupees 60. It means as the quantity increases here, here also quantity increases. In case अगर क्वांटिटी डिक्रीज हुआ नीचे तो ऊपर भी डिक्रीज होने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं। और एक उसमें एक बात देखिए, 20/1, 40/2, 60/3, 1 1s are 120s are, 2 1s are 220s are, 3 1s are 320s are, 20:20:20। Value is constant by division. तो डायरेक्ट वेरिएशन में what you have to remember, see, if the one quantity increases, other quantity also increases. In case if it decreases, then other quantity also decreases, and value remains constant when we divide it. That is known as direct variation. Now see, what is inverse variation? Number of days for the fencing work, number of workers. 2 लोग एक फेंसिंग का काम 10 डेज में करते हैं, 4 लोग 5 डेज में करते हैं, 5 लोग 4 डेज में करते हैं। Here what happened? Quantity here increases, but here decreases. And another point, now see, 10/2, 2/1, 5. अभी हमें क्या होता है, याद रखिए, हमें कैसा करने का है, 10 2s are 20. Now see, 10 2s मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 10 2s are 20, 5 4s are 20, 4 5s are 20. Value remains constant. It means one quantity increases, other quantity decreases. That is why it is known as, and value remain constant by multiplication. That is why it is known as inverse variation. Because see, if you do like this, 2 1s are 2 5s are, but here 5/4, 4/5, not same, but you multiply it, then see it is same. So 2 points you have to remember in direct variation. One quantity increases, other quantity also increases, value remains constant by division. Here one quantity increases, one quantity decreases, value remains constant by multiplication. Okay, it is known as inverse variation. Now let us start the maths. Now our math is 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required?
तो देखिए हम लोग ऐसे एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज। जब 3 वर्कर्स रहते हैं वो ये काम 8 दिन में करते हैं, तो कितना वर्कर्स है तो 6 डेज में। तो ऑब्वियसली तुमको मालूम पड़ता है अगर 3 वर्कर्स लेके ये काम को 8 डे में खत्म करते हैं, तो अगर 6 करने का है तो इधर बड़ा ही होगा नंबर, कॉमन सेंस की बात है। तो 1 क्वांटिटी डिक्रीसेस एंड 1 क्वांटिटी increases, it is known as inverse variation। तो अगर एक इंटेलिजेंट लड़का है तो वो इसका आंसर 2 मिनट में बोल सकता है। कैसा मालूम है क्या? इनवर्स वेरिएशन में वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन, 3 8 are 24। तो इधर 24 आने का है तो क्या लिखने का? 6 4 are 24, 4 आंसर आया। लेकिन आंसर आया करके वो वैसे ही लिखने का क्या नहीं, उसको वर्किंग मांगता है। ओके, नाउ लेट अस डू द मैथ्स हियर। Now see how to write the statement. How many persons are required? वो हमें मालूम नहीं है ना, तो लिखो let the number of workers is equal to x, क्योंकि ये मालूम नहीं है, it is we take it as common multiple. Now what we have to do? 3 into 8 is equal to x into 6. 3 8s are 24. X 6s are 6x. Now variable number right here, 6x is equal to 24. Therefore x is equal to 24 upon 6 4. 6 4s are 24. Therefore answer 4 persons are required. Okay, now this math is right. Now let us go to 5th maths. Now our 5th question is convert the following ratio into percentage. अभी आपको मालूम पड़ने का, परसेंटेज है तो हमें डिनोमिनेटर 100 आना मांगता है। तो ये कैसा करने का देखिए, 15:25 रेशियो ऑफ 15:25। नाउ 15/25। तो आपको मैंने बताया परसेंटेज आने का है तो वी शुड गेट 100 बिलो। तो मैथ्स का रूल कैसा है, नीचे जो नंबर से इंटू करते हैं ऊपर भी वही नंबर से इंटू करने का। तो 25 को कौन सा नंबर से इंटू किया तो 100 आता है? 4। 25 4s are 100, तो ऊपर भी 4 से करो, 15 4s are 60। सो योर आंसर इज 60%। तो तुम्हारा मैथ्स राइट हुआ। सेकेंड मैथ्स में जाएंगे, 47:50। First write the statement, ratio of 47 to 50, 47/50। तो इधर कौन सा नंबर डालने का? 100 आने का है तो 52 सार, तो इधर भी 2 करो, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 9, 94%। मतलब एक बात याद रखिए, आपका हर एक मैथ्स में 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप्स होना मांगता है अगर आपको मार्क्स मांगता है तो अभी हमारा थर्ड मैथ्स, अभी रेशियो ऑफ 7 to 10। अभी देखिए ये स्टेप करने का नहीं है, डायरेक्ट ये दिया है तो डायरेक्ट तुम भी लिखो। अभी इधर कौन सा नंबर लिखा तो 100 आता है, 10 10s are, तो 7 10s are 70। तो तुम्हारा आंसर है 70%। ये भी हो गया। अभी फोर्थ वन, 546/600। अभी क्या है देखिए, अगर इधर सब क्या हुआ, इधर सब बरोबर देखिए, इधर छोटा नंबर 2500, इधर 50 इधर 10 लेकिन इधर इस साइड का नंबर बड़ा, इस साइड का नंबर छोटा। तो अगर आप 600 को 100 से करेंगे, बाप रे हमें तो इधर 100 आना मांगता है। तो कॉमन सेंस, तो 100 से
डिवाइड कौन सा नंबर से 600 को कौन सा नंबर से डिवाइड किया तो 100 आता है 6 है ना 600 सर 600 तो लेट अस डिवाइड दिस वन आल्सो 6 9 सर 54 6 1 सर 6 लेकिन अगर एक स्टूडेंट मुझे ऐसा पूछेगा समझिए ये 6 ही आता है करके कैसा समझ में आता है उसके लिए एक ट्रिक्स है 100 को 600 से डिवाइड करो 100 6 7 तो वो 6 इधर लिखो फिर इसको 6 से करो इसको 6 से करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 91%. Now let us go to next maths, that is fifth one 7/16. अभी इधर क्या होता है बरोबर सुनिए 100 का टेबल में 16 5 are 80 66 are 96 नहीं होता है तो हम लोगों ने क्या करने का अभी थोड़ा दिमाग डालने का कैसा दिमाग डालेंगे देखिए बरोबर सुनिए अभी इधर कुछ इधर ऐसा 16 आपने लिखा समझिए तो अभी 100 में जाता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या बरोबर सुनिए इस 16 को हटाने को देखेंगे ऐसा ओके तो अगर इधर लिखा है तो हमें इधर भी लिखने का सॉरी हम लोग 100/16 लिखने का हमको 16 को हटाने का है ना बरोबर सुनिए हमें 16 को हटाने का है तो आपको 16 को नीचे लिखने का 100 को नहीं तो देखो ऐसा किया तो देखो तो खाली 100 रह गया उस 100 को इधर लिखो अभी क्या होता है 7 × 100 700 डिवाइडेड बाई 16 अभी देखिए 16 4 जा 64 तो इधर आया 16 4 जा 64 अभी 10 में 4 गए तो 6 अभी ये 1 0 अभी 60 फिर से 16 3 जा 48 फिर इधर आया 2 इधर आया 1 फिर से अभी हम लोग बाहर से पॉइंट लेते हैं करके हम लोग अभी ये इधर ये पॉइंट नहीं डालेंगे पॉइंट डालेंगे 120 16 7 7 112 तो अभी 10 में 2 गए तो 8 अभी ये 1 हुआ 0 0 अभी और एक 0 लेंगे 16 5 जा 80 तो हुआ 43.75 तो नीचे 100 है ही ये 100 तो हो गया 43.75 your maths is finished 3 4 5 okay now see I have explained each and every sum 4.1 का 3 4 5 and you might have understood also और आपको ये चैनल पसंद आया ये लेसन पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन बाय